Hello students, we have already studied two techniques for separating the components of any mixture. ठीक है. The very first technique which we studied was separating dye from ink. Clear? How to separate colored component from the ink. वो कैसे करते हैं? Ink is dye plus water. So what we can do, we can evaporate the water. So I've already told you how to increase the rate of evaporation by using watch glass. ठीक है. Then we studied the second thing which we studied was centrifugation technique. Now what is centrifugation? It is the process of separating the components of the mixture on the basis of the difference in their densities. ठीक है. Rotating the mixture at a very high speed, the denser particles will remain at the center, means beneath, and the lighter particles will rise up in the mixture. The third technique, the third activity which we are going to study is how can we separate a mixture of two immiscible liquids. Now what is the meaning of immiscible liquids? So third आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? Separation of I'm so sorry. Separation of two immiscible liquids. ठीक है. Separation of two immiscible liquids. You can see activity 2.6. Okay. In that activity 2.6, a separating funnel is given to you. ठीक है. A separating funnel of this shape is given. Clear? Just a minute. Like this. Okay. Now a stopcock is located at the bottom. Here a stopcock is located. Clear? A mixture, the mixture is filled from the top and then the top is closed. इस टॉप को यहां से क्या कर दिया? क्लोज कर दिया. Now if the mixtures are immiscible, immiscible मतलब the liquids they cannot be mixed. वो मिक्स नहीं हो सकते. For example, kerosene and water. वो मिक्स नहीं हो सकते. अब थोड़ी देर उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो थोड़ी देर बाद केरोसिन की लेयर अलग होगी, वाटर की लेयर अलग होगी. सो इफ द लिक्विड्स आर इमिसिबल तो वो मिक्स नहीं होंगे. सो व्हेन दे आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, both the liquids they form the separate layers. Clear? You can see here, this is the separating funnel. Now when the immiscible liquid, the mixture containing immiscible liquid is poured into this separating funnel and left undisturbed for a certain period of time, what will happen? The two liquids will form separate layers. Suppose this is first liquid and this is second liquid. Clear? Now what you have to do? You have to just open this stopcock. Clear? What you have to do? You have to open this stopcock slowly. ठीक है? एकदम से पूरा ओपन नहीं कर देना है. Such that the mixture starts flowing through this stopcock. I'm so sorry. See, you have to keep a flask over here. You have to open this stopcock. Okay. Now this mixture will start flowing into this flask. Now as the first liquid, suppose this is liquid A and this is liquid B.
Now the separating funnel will be a transparent funnel. So you can see how much amount has finally poured into this flask. So what you can do when this liquid B is collected in this flask, you can just again close this stopcock so that the liquid A remains in the separating funnel while the liquid B is collected in the flask below. क्या करना है आपको? ये stopcock को ओपन करना है. क्लियर? stopcock को जैसे ही आपने ओपन करा, ये नीचे फ्लो होगा. ओके? When this flows down, as soon as you observe that this liquid is getting filled into this flask, so before this liquid starts pouring into this flask, what you have to do, you have to again apply this stopcock so that liquid A should remain in the separating funnel and liquid B should remain in the flask. And that's how you can easily separate a mixture containing two immiscible liquids. ठीक है, मिसेबल लिक्विड सेपरेट नहीं हो सकते इस मेथड से. इस मेथड से कौन से लिक्विड सेपरेट होते हैं? इमिसिबल. इमिसिबल स्टैंड्स फॉर लिक्विड्स which can't be mixed. Okay, so this is activity number 3, means in the separation of components of any mixture we have studied till now 3 techniques. ठीक है. So if the liquids are immiscible, आपको क्या बोलते हैं, एग्जाम में पूछा होगा, आपको कोई एक पर्टिकुलर केस दिया होगा कि सपोज दीज आर द कंपोनेंट्स, हाउ कैन यू सेपरेट दिस. तो आपको अपना लॉजिक लगाना है. इफ यू आर आस्क्ड टू सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम इंक, तो आपको ऑब्वियसली इवेपोरेशन टेक्निक यूज करनी पड़ेगी. अगर आपको ऐसा बोला है कि डेंसिटी में डिफरेंस है, तो आपको सेंट्रिफिकेशन करना पड़ेगा. एंड इफ द केस इज ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, देन यू हैव टू यूज दिस टेक्निक ऑफ यूजिंग सेपरेटिंग फनल. ओके, सो जस्ट गो थ्रू दिस एक्टिविटी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. क्लियर? रीड दिस एक्टिविटी and next activity we will start, which is how can we separate a mixture of salt and ammonium chloride. Fourth, how can we separate a mixture of salt and ammonium chloride. So separation of components of salt and ammonium chloride. Okay, now see, ammonium chloride, this ammonium chloride is actually sublime. Ammonium chloride is sublime. But what is the meaning of sublime? Sublime means the substances or the elements or the compounds which can show the property of sublimation. Means when ammonium chloride is heated, it is not converted into liquid form, it is directly converted into its gaseous form. What is the meaning of sublimation? कि कोई भी सब्सटेंस को आप हीट करो तो वो सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए? गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. तो आपको क्या करना है, एक फ्लास्क लेना है आपको, इन्वर्टेड फनल. ठीक है, इन्वर्टेड फनल इस टाइप का है. ओके, इसमें आपको क्या फिल करना है? अमोनियम क्लोराइड प्लस सॉल्ट, इसका मिक्सचर है. नाउ यू हैव टू सप्लाई हीट. Means by using burner you have to supply heat, but before supplying heat this should be covered with a cotton plug. This should be covered with a cotton plug.
किससे कवर कर देना है इसको? कॉटन प्लग से। कॉटन प्लग मतलब यू नो कॉटन प्लग क्या होता है? रुई, ठीक है, उससे आपको कवर कर देना है। नाउ व्हेन दिस इज गेटिंग हीटेड, दिस अमोनियम क्लोराइड बीइंग सबलाइन, दिस विल डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर फॉर्म। तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम you will see the vapors of ammonium chloride getting sticked here. यहां पे स्टिक होने लगेंगे vapors of ammonium chloride. क्लियर? और सॉल्ट यहां से सेपरेट हो जाएगा। अब इन्वर्टेड फ्लास्क है ये, तो ये फ्लास्क अब जैसे ही हटाओगे तो सॉल्ट आपको नीचे मिलेगा। सिर्फ फ्लास्क को उस पर रखा हुआ है, ठीक है, इन्वर्टेड फ्लास्क, और ऊपर क्या लगा दिया है? कॉटन प्लग। अब जैसे ये फ्लास्क यहां से हटाएंगे, नीचे आपको सॉल्ट मिलेगा, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड तो क्या हो गया है? वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट नहीं होगा। आफ्टर हीटिंग इट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, हीट भी कुछ लिमिट पे करना है, थोड़ा ही टेम्परेचर, वरना सॉल्ट का भी कोई यूज रहेगा नहीं। बिकॉज इफ यू आर हीटिंग एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, तो ये सॉल्ट भी खराब हो जाएगा। सो यू हैव टू हीट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, ठीक है, उससे ज्यादा हीट नहीं करना है। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन सेपरेट अ मिक्सचर विच कंटेन्स अ सब्सटेंस विच इज सबलाइन। कोई भी मिक्सचर में कोई भी एलिमेंट अगर सबलाइन है, तो अगर आप उसको हीट करोगे तो ऑब्वियसली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। क्लियर? तो अमोनियम क्लोराइड के क्या फॉर्म हो जाएंगे? वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज योर एक्टिविटी 4। समझ आ गया? अब अगर कोई सबलाइन हुआ है, कम जो भी मिक्सचर है उसमें कोई भी एलिमेंट अगर सबलाइन है, तो उसको हम किससे उससे कर सकते हैं? किससे सेपरेट कर सकते हैं? बाय द मेथड ऑफ हीटिंग, और बाय कन्वर्टिंग दैट sublime substance into its vapor form. Now what is the meaning of sublime substance? The substances which show the property of sublimation, means on heating those substances get converted into its vapor form. Just go through this activity. इसके बाद जो हम एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको IMP मार्क करना। वो अलग से एक्टिविटी बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है, तो एक्टिविटी हम पढ़ते हैं। चलो, your fifth technique is separating colored components of a dye. पहले हमने क्या देखा था? सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम इंक। इंक में से कलर्ड कंपोनेंट निकालना। इंक क्या होता है, ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर आप ये क्वेश्चन में इंक वाला लिख के आ जाओगे तो गलत है। इंक होता है डाई प्लस वाटर। So separating colored component means dye from ink. डाई को इंक से अलग करना, तो वाटर इवेपोरेट कर देना है। डाई को इंक से अलग करने के लिए वाटर को क्या कर देंगे? हम इवेपोरेट कर देंगे। दिस वाज द फर्स्ट टेक्निक। बट डाई, सपोज यू हैव अ ब्लैक पेन और अ ब्लू पेन, तो उसमें सिर्फ एक ही कलर नहीं होता है, सिर्फ ब्लू कलर नहीं होता है, मिक्सचर ऑफ कलर्स होते हैं, तो वो पर्टिकुलर शेड आता है। ब्लू में भी अलग अलग शेड्स होते हैं। So there are mixture of certain colors. You can see there are orange pens, there are red pens, there are black pens. So in a particular dye, there is a mixture of several colors. Dye is a mixture of several colors. अब आपको ये कलर्स को अलग अलग करना है, किसमें से? डाई में से। पहली एक्टिविटी क्या पढ़ी हमने? सेपरेटिंग डाई फ्रॉम इंक, मतलब वाटर अलग कर देना है। अभी इंक की बात ही नहीं है, अभी क्या है, डाई में से आपको कलर्ड कंपोनेंट्स को अलग अलग करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास ब्लैक पेन है, तो उस ब्लैक पेन की डाई में, इंक नहीं,
इंक में तो वाटर होगा, ठीक है। तो क्या करना है, हमें उसकी डाई में से, मतलब जो ब्लैक कलर है उसमें से, उस ब्लैक कलर में कितने कलर्स हैं उसको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है उन कलर्स को। सो ये एक्टिविटी क्या है, सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ डाई। इंक में से डाई को अलग करने का मतलब होता है वाटर अलग कर देना, बट डाई में से कलर्स अलग करने का मतलब जितने भी कलर्स प्रेजेंट है उनको अलग अलग कर देना। तो इस टेक्निक को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी। व्हाट इज दिस टेक्निक नोन एज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में हम बाद में बताते हैं। देखो, what you have to do, you can see activity 2.7, you have to take a thin strip of filter paper. filter paper की भी strips आती हैं। You have to take a thin strip of filter paper. आपने filter paper की एक strip ले ली। Draw a line on it using a pencil approximately 3 centimeter above the lower edge. ये तो आपको एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एग्जैक्ट दिया है। तो थोड़े से डिस्टेंस पे, नीचे से थोड़े से डिस्टेंस पे आपको जिस पेन की इंक में से उसके डाई के कलर्स को सेपरेट करना है, उस पेन से यहां पे लाइन बना दो। सपोज मुझे इस मार्कर के कलर्स, इसमें मार्कर में कितने कलर्स हैं उसको सेपरेट करना है, तो हमने यहां पे क्या बना दी, लाइन बना दी उससे। ठीक है, यहां पे उसकी लाइन बना दी। ये लाइन आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ दिस लाइन बाय यूजिंग अ पेंसिल। ये लाइन आपको किससे बनानी है, पेंसिल से बनानी है, पेन से नहीं। ठीक है, अब आपको जिस इंक की डाई में से कलर्स को सेपरेट करना है, उस इंक की डाई को इस लाइन के सेंटर पे रख दो। ठीक है, what we did, what we have to do, we have to take a thin strip of filter paper. We have to take a thin strip of filter paper. Now, you have to draw a line using a pencil. ठीक है, you have to draw a line using a pencil just 3 centimeter above the lower edge. ठीक है, 3 सेंटीमीटर थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, बताऊंगा ऐसा क्यों करा है। फिर उसी लाइन पे आपको जिस इंक की डाई में से आपको कलर सेपरेट करने हैं, वो यहां पे पॉइंट कर दो, वो इंक को ड्रॉप एक लगा दो। अभी इस इंक में क्या होगा, डाई प्लस वाटर होगा। हमें तो क्या करना है, डाई के कलर्स को सेपरेट करना है, वाटर हमें नहीं चाहिए। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, आफ्टर डूइंग ऑल दिस, हमें इसको अनडिस्टर्ब थोड़े टाइम के लिए इस फिल्टर पेपर को ऐसे ही रहने देना है। तो क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा थोड़े टाइम। इंक में इंक सूख जाती है ना, सूख क्यों जाती है, क्योंकि इसका वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। ठीक है, थोड़ी देर बाद देखोगे आप, इंक स्मज नहीं होती है क्योंकि उसमें से वाटर इवेपोरेट हो जाता है। तुरंत आप लिख के उस पे से अगर आप उसको रब करो तो इंक स्प्रेड होगी, स्मज होगी। बट अगर आप थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो, उसके बाद करो तो नहीं होगा, क्योंकि उसका वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ दिस लाइन यूजिंग अ पेंसिल। यू हैव टू ओवर ड्रॉप ओवर हियर, ड्रॉप ऑफ इंक, एंड यू हैव टू लीव दिस फिल्टर पेपर अनडिस्टर्ब फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो अब यहां पे क्या रह गया, सिर्फ क्या रह गया, सिर्फ डाई रह गई। अब आपको एक बीकर में, ठीक है, आपको देखो क्या क्या यहां पे दिया है, एक जार दिया, पेपर क्लिप्स दी है। देखो, आपको एक जार में एक, दिस इज अ जार, इसमें वाटर फिल्ड है। आपको फिल्टर पेपर को डिप करना है, कहां तक, ये लाइन टच हो, बस इससे पहले तक। ये लाइन के टच होते ही, मतलब ये लाइन यहां पे होनी चाहिए लगभग, ये लाइन बस इसको सिर्फ टच ही करनी चाहिए, पूरा डिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लाइन का जो लोअर एज है
वहां तक इसको लेके जाओ, ठीक है, और पेपर क्लिप से उसको जार पे अटैच कर दो, ठीक है। पेपर क्लिप से उस फिल्टर पेपर को, जैसे फिल्टर पेपर है, यहां पे पेपर क्लिप्स लगा के इसको एज इट इज रखने के लिए छोड़ दो। यहां पे इसकी लाइन होगी, यहां पे इंक होगी। अब क्या होगा वो देखो, ये इंक में कलर्स हैं अलग अलग। नाउ द फिल्टर पेपर हैज पोर्स। फिल्टर पेपर में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। तो उसकी वजह से दिस वाटर विल स्टार्ट, आप धीरे धीरे फिल्टर पेपर में देखोगे वाटर ऊपर आता जाएगा। तो वो पोर्स की हेल्प से वाटर ऊपर जा रहा है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं इसको, कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर। आप कभी फिल्टर पेपर को डिप करो तो उसमें वाटर ऊपर राइज होगा, धीरे धीरे ऊपर राइज होगा। तो इसमें क्या होते हैं, कलर्स होते हैं। डाई इज मेड अप ऑफ सेवरल कलर्स। अब हर एक कलर की वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन वाटर। जैसे रेड की सॉल्युबिलिटी अलग होगी, ग्रीन की सॉल्युबिलिटी अलग होगी। तो इसमें जितने भी कलर्स होंगे, इसमें सबकी सारे कलर्स की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अलग होगी। तो जिसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो वाटर में जल्दी डिसॉल्व होके वाटर के साथ ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है वो कलर एकदम ऊपर चला जाएगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है वो इतना ऊपर नहीं जा पाएगा। सो दिस इज हाउ द कलर्स विल बी सेपरेटेड। मैंने क्या बोला, कलर्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जैसे फिल्टर पेपर डिप किया था, वाटर विल स्टार्ट राइजिंग। पूरा डिप करने पे ये चीज नहीं होता है, एकदम थोड़ा सा डिप करने पे नहीं होता है। इसने 3 सेंटीमीटर लिया है, इतना डिप करोगे धीरे धीरे वाटर ऊपर राइज होगा, ठीक है। वाटर जैसे जैसे राइज हो रहा है वो इंक को अपने साथ लेगा। बट इंक में क्या है, अलग अलग कलर्स हैं। वो कलर्स की सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या है, डिफरेंट है। तो जिस कलर की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो वाटर के साथ जल्दी ऊपर जाएगा, जिसकी कम होगी उसको जाने में टाइम लगेगा। सो दिस इज हाउ द कलर्स विल बी सेपरेटेड, कलर 1, कलर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कलर्स, this type of separation is known as chromatography technique. इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्रोम कहां से आया, कलर से ही आया। तो कलर्स को सेपरेट करने की टेक्निक को, इस टेक्निक को क्या बोला जाता है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। फिर से हम देखते हैं हमने क्या करा। हमने एक फिल्टर पेपर लिया, 3 सेंटीमीटर पे एक पेंसिल से लाइन बनाई, उस पर इंक ड्रॉप कर दी, फिर उसको थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ दिया सो दैट वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द इंक। So the remaining thing here will be, the residue here will be only dye. Now this filter paper is dipped inside a jar containing water, ठीक है, so that this line remains just above the water surface level. इसलिए हमने लाइन बनाई थी जिससे हमें पता चले। Now the filter paper has some pores, so this water will start rising due to capillary action. आपने देखा होगा थर्मामीटर में मर्क्यूरी ऊपर राइज होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। तो कोई भी छोटी जगह से वाटर ऊपर राइज होना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे पोर्स है, पोर्स आर वेरी माइन्यूट इन साइज। सो वहां से वाटर ऊपर राइज करेगा, तो उस एक्शन को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। नाउ द डाई हैज सेवरल कलर्स व्हिच हैज डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सो द वन व्हिच हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर विल मूव विद वाटर इजीली। तो वो ऊपर चला जाएगा कलर, जिनकी सॉल्युबिलिटी कम है वो नीचे रह जाएंगे। एंड दिस इज हाउ द कलर्स आर सेपरेटेड। एंड दिस टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ कलर्स इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो आज हमने 3 टेक्निक्स पढ़ी। पहली 2 एकदम सिंपल थी, तो सेपरेटिंग फनेल। देन सेकेंड सब्लाइम मिक्सचर वाला, हीट कर दो सब्लाइम में वो हट जाएगा। जो हमने ये पढ़ी ये थोड़ी ट्विस्टेड है और यही पूछी जाती है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। सो जस्ट गो थ्रू दीज 3 एक्टिविटीज, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझे टेक्स्ट करना, फिर से अगर क्रोमेटोग्राफी में ज्यादा डाउट रहे तो मैं फिर से आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो लेक्चर वंस और ट्वाइस, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी बार भी देखो, क्लियर, एंड रीड दीज एक्टिविटीज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो।
आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, जितनी भी एक्टिविटीज केमिस्ट्री में होती हैं वो आपको टेक्स्ट बुक से रेफर करती जानी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।